Yes, sir. Yes. Okay. So now we will study how to check from the zeros that the equation or the zeros we get are correct or not. If we just want to see whether the zeros we got are correct or not, it is simple. अगर आपके पास कोई zeros है, कुछ भी value a, b, c, d, किसी भी zeros value आ गई, any equation, let's say this was an equation, px equals to 2x x square minus 8x plus 6, and they said कि इसके zeros 2 और 3 हैं. Let's see कि है या नहीं, चेक करना. तो simply you will put the value of 2 in x. If it becomes 0, that means it is a zeros of this equation. अगर नहीं बनता तो नहीं है. Now we will check how to see कि whether the coefficients of equation and zeros are related or not. For this we will check out over here. Now we have made it, let the zeros be alpha and beta. Sir, for alpha you can use at the rate. Using another at the rate I'm using for alpha, okay. And for beta we will be using another sign, let's say capital B. Beta is capital B, okay. Alpha is at the rate over here. Okay, these are the two zeros. Sum of zeros, that is alpha plus beta will be equals to minus b upon a. This minus b is actually, this minus b is coefficient of x upon coefficient of x square. Is this clear? This is what we get. If we correlate the sum of zeros, we'll get it in the form of coefficient of x upon coefficient of x square. If we correlate product of zeros, alpha into beta will gives you c upon a, where c is just a constant. C is constant upon, again, coefficient of x. Okay, this is what we have studied. Using this, we will solve exercise 2.2. मैं एक बार इसको कॉपी पे भी करके दिखा रहा हूँ so that it will be more clear to all of you. Let's see. Sir, x square. X square. A x square plus bx plus c. Okay, and इसका दो roots हैं alpha and beta. Sum of roots alpha plus beta will always be equals to coefficient of minus coefficient of x upon coefficient of x square. मैंने क्या बताया था? coefficient of जो maximum term होगी, डिग्री होगी, जिस भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री होगी, उसका कोएफिशिएंट कैसा रहेगा? हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा. उसका कोएफिशिएंट कैसा रहेगा? हमेशा डिनोमिनेटर में, चाहे वो कोई भी इक्वेशन क्यों ना हो. ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जो क्यूबिक भी होगा तो क्यूबिक में भी यही यूज होने वाला है कि जो भी मैक्सिमम डिग्री वाला वेरिएबल होगा, डिग्री क्या है? इस पोर्शन को डिग्री कहते हैं, जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं, और जो भी मैक्सिमम पावर यूज हो रही है वेरिएबल के साथ वो उसकी डिग्री हो जाती है पूरी इक्वेशन की. जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं. How many degrees are here? It has maximum 2 degrees, so it will be having 2 zeros. Now, as we have this 2 as a maximum degree over here, the coefficient of this x square will always be a denominator. तो प्रोडक्ट जब हमने सम किया तो ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर. अब ये नेगेटिव साइन क्यों है? दोनों ऐड हो रहे हैं.
सिर्फ ऐड हो रहे हैं और ये सिंगल डिजिट्स हैं, तो हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, तो हम नेगेटिव साइन लगा के चलते हैं फॉर करेक्शन। ऐसे समझ सकते हो कि नेगेटिव आएगा ही आएगा जब ऐड हो रहा है, ठीक है। जब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है। तो इन जब हम प्रोडक्ट करते हैं, 2 का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा कैसे रहेगा, पॉजिटिव। 3 का करेंगे तो चेंज हो जाएगा। 2 का देखते हैं पहले, 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x square. Again this will be minus b upon a, this will be c upon a. c is constant, b is coefficient of x and a is coefficient of x square. Okay, अगर इसकी जगह हम ले लेते हैं एक equation which is cubic. Cubic equation will be like ax cube plus bx square plus cx plus d. If this is a equation, okay, and we have to find the product sum of zeros and product of 2 plus sum of zeros. तो let's say इनके roots क्या थे, zeros क्या थे, zeros be alpha, beta and gamma. It was having 3 roots, alpha, beta and gamma. Then sum of roots alpha plus beta plus gamma will always be, तो नेगेटिव रहने वाला है। सम कैसे रहने वाला है, हमेशा नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव साइन लिख दोगे। दूसरी चीज क्या बताई थी, जो भी मैक्सिमम डिग्री वाला वेरिएबल है, मैक्सिमम डिग्री वाला वेरिएबल कौन सा है, एक्स क्यूब, इट हैज अ डिग्री 3, तो इसके 3 जीरोस हैं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा नीचे, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये क्या आ जाएगा इधर, ठीक है। और जब हम सम करते हैं तो जो मैक्सिमम वाला है उससे एक कम, जो भी उससे कम वाला होगा जस्ट बिलो दैट, उसका कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में आ जाएगा, किसमें, सम में। जो भी मैक्सिमम वाला है उससे जो भी कम होगा, उसका एक कम वाला होगा, उसका न्यूमरेटर कहाँ आ जाएगा, उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इन न्यूमरेटर. This will gives you minus b by a. Same as in this case, यहाँ पे minus b by आया था, यहाँ पे minus b by a आ गया. Next होगा product of roots alpha into beta into gamma. Now product किसका कर रहे हैं हम, 3 का, तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर तीनों नेगेटिव हुए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव। जब 3 होंगे प्रोडक्ट तो नेगेटिव, 2 इवन नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिव, ऑड नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देन अगेन बेस में तो हमें पता है क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, हमेशा यही आएगा, मैक्सिमम यही डिग्री है तो ये हमेशा बेस रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, अब प्रोडक्ट में हम किसे लेते हैं, प्रोडक्ट में हम लेते हैं कांस्टेंट को, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट, दैट इज माइनस डी बाय ए, इट विल बी माइनस डी बाय ए। आफ्टर दिस यू हैव, सर हमने कांस्टेंट माइनस में क्यों लिया, कांस्टेंट यहाँ पे माइनस में क्यों लिया, मैंने क्या बताया, जब हम प्रोडक्ट 2 टर्म का करेंगे, जैसे ऊपर वाले में प्रोडक्ट किया था सिर्फ 2 टर्म्स का, तो पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। जब हम प्रोडक्ट करें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का, यहाँ ऑड हो गई 1 2 3 3 हो गई, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, तो क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। तरीका ये भी है, ये भी समझ सकते हो। जब मैक्सिमम डिग्री इवन होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मैक्सिमम डिग्री ऑड होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड देयर सम्स, वो क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros एंड देयर सम, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी अगेन नीचे तो क्या आने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हमेशा बेस में रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा।
अब देखो प्रोडक्ट दो का कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ऊपर ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। आपका कॉफिशिएंट ऑफ ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब यूज हो चुका है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूज हो चुका है, कांस्टेंट यूज हो चुका है, बचा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जो भी बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, ये याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट विल बी इट्स आंसर, सी अपॉन ए। ये दो ही तरह के बस आपको इक्वेशंस आपके कोर्स में जो आएंगी, आइदर अ क्यूबिक और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अपनी कॉपी पे सब नोट भी करते रहोगे, सेम एज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। इफ यू वांट अ टाइम यू कैन नोट इट डाउन। या फिर अपने मोबाइल से स्क्रीन ग्रैब भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। And this is for cubic equation. Now let's go to the questions. ये दोनों क्लियर है सबको? पहली चीज, जीरोस क्या होंगे, जीरोस वो वेरिएबल की वैल्यू होगी जिससे कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो। The value of variable which makes the expression zero is called zeros of those equation. Even zeros are also roots of equation. Zeros बोलो चाहे उन्हें roots बोलो, both are same. अगर मैं किसी expression को solve करता हूँ, let's say जो होता है 2x square minus 8x plus 6. 2x square minus 8x plus 6. This was a question. 2x square minus 8x plus 6. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, मैं इसके x की ब्रेक कर सकता हूं टर्म्स को। 6 ये हो जाएगा 2x square minus 6x minus 2x plus 6, मिड टर्म स्प्लिट कर दिया मैंने किससे, बाय प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट किया और उसको मिडिल टर्म में ब्रेक कर दिया। तो दिस will get 2x will be common over here and you'll get x minus 3. From this you can take out minus 2 common and you'll get x minus 3. 2x minus 2 and x minus 3. We will get x equals to 2 upon 2, that is 1. Over here x equals to 3. एक x की वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू क्या आएगी 3. This is actually the zeros और this is actually the roots. इनको roots कह सकते हैं, इसको zeros कह सकते हैं। यही इसके zeros हैं, यही इसके roots हैं। ठीक है, this will be their zeros also roots. तो इसके roots क्या होगा, if I ask roots, ये alpha will be this, beta will be this, और these are also the zeros, यही इसके zeros भी हैं। जीरोस और रूट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस विल बी अल्फा प्लस बीटा, दैट इज क्या हो जाएगा 1 plus 3, और वैसे क्या होता है, वैसे ये होता है माइनस बी बाय ए। वैसे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा अपॉन उससे छोटे वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर माइनस साइन के साथ। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, माइनस और बी क्या था -8 अपॉन ए इज 2, दैट इज 8 upon 2 गिव्स यू 4। तो ये भी क्या आ रहा है 4, हेंस बोथ आर सेम एंड करेक्ट, बोथ आर same and correct. On the other hand, product of zeros will be alpha into beta equals to c by constant upon coefficient of a coefficient of x square. तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1 into 3, कांस्टेंट कितना हमारा 6, a कितना है 2, this will get 3, this will also get 3, hence this is also same, hence this verifies that the
roots of zeros of given equation 2x square minus 8x plus 6 is 1 and 3. ये clear है सबको? Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now we go to question answers of this chapter. Fifth question देख लेते, fifth example देख लेते हैं एक बारी from over here itself. This is the important example from exam point of view. Verify that 1 minus 3 and minus 1 by 3 are zeros of cubic equation this. ये इसके क्या है? Zeros. ये हमें verify करने हैं. ठीक है. And then verify the relationship between zeros and coefficient also. मैं इसको करके दिखा देता हूँ. Now this is given to you all. 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. अब इसमें से अगर मुझे ABCD फाइंड आउट करने हो तो ये हो जाएगा ax cube plus bx square plus cx plus d. ये इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म. इस स्टैंडर्ड में से a क्या निकला? a will be equals to 3. b क्या निकला? b will be equals to minus 5. c क्या निकला? c will be equals to minus 11. and d will be equals to minus 3. This is what we are getting. A, B, C, D अगर मैं इसको चेक करूं तो we'll get this. ये हमारे ABCD हो जाएंगे. ये तीनों हमारे क्या है? अल्फा, बीटा एंड गामा. 3 रूट्स. ठीक है. These are ABCD and these are 3 रूट्स. अब सबसे पहले चेक करना है whether they are roots of this equation or not. रूट्स इस इक्वेशन के हैं या नहीं ये चेक करने के लिए करना पड़ता है रूट्स की वैल्यू x की जगह प्लेस कर दो. तो पहले चेक करेंगे फॉर 3 तो P3 वैल्यू ऑफ 3 अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दी. P3 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3 क्यूब. x की जगह क्या आ जाएगा? 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3. सॉल्व करते हैं. 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3. 27 into 3 will gives you 81. 80. Sir, 81. 5 into 9 is 45. 3 plus 3 minus 36. 81 minus 81 will gives you 0. ठीक है. Hence this is a root of given equation. Similarly, we will check for second one. That is second one is minus 1. We will put the second root. That is 3. x की जगह रिप्लेस करके अब क्या लिखेंगे? minus 1. 3 into minus 1 whole cube minus 5 into minus 1 whole square minus 11 into minus 1 minus 3. Further we will solve 3 into minus 1 का cube will be minus 1 so this will become minus 3. Minus 5 into minus 1 square is 1. It will remain minus 5. Minus 11 into minus 1 becomes positive 11 and then minus 3. 3 plus 5 is 8. 8 plus 3 is minus 11 plus 11 gives you 0. Again this becomes 0. That means this is a zero of given equation. Last हमें verify करना है P when 0 is minus 1 by 3. हमने 0 क्या लिया है? minus 1 by 3. तो x की जगह आप क्या पुट कर देंगे? minus 1 by 3. इक्वेशन क्या थी? 3 into minus 1 by 3 whole cube minus 5 into 1 by 3 minus 1 by 3 whole square minus 11 into minus 1 by 3 minus 3. This will get solve करना start करेंगे तो क्या हो जाएगा? minus 3 upon 27 क्योंकि क्यूब करेंगे तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा. minus 5 into क्यूब करेंगे 1 upon 9. यहाँ सॉल्व करेंगे तो it will be minus minus will become positive plus 11 upon 3 minus 3. Now we can cut this out, becomes 9 minus 1 by 9 minus 5 by 9 plus 11 by 3
minus 3. Further we can simplify this as, further simplify करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो सकते हैं, तो माइनस 6/9 प्लस 11/3 माइनस 3. वी कैन कट इट अगेन 2/3 और सिंपल फॉर्म में कर लिया. कुछ भी अभी एलसीएम ज्यादा ले ही नहीं रहे हम, सिंपल सिंपल ही कर रहे हैं. तो हो जाएगा माइनस 2/3 प्लस 11/3 minus 3. Again denominators are same, we can subtract them. 3, 11 minus 2 minus 3. 11 minus 2 is 9. 9/3 minus 3 gives you 3 minus 3, that is 0. ये भी क्या हो गया, 0. Hence minus 1/3 is also a root of given equation. हमारे पास अब रूट्स आ गए हैं. तीनों रूट्स क्या हैं, वेरीफाई कर दिए हमने कि यस, ऑल 3 रूट्स आर करेक्ट. दे आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. अब चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कोफिशिएंट वाली के साथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. कोफिशिएंट वाले मेथड से चेक करें तो करते हैं, नहीं करते हैं. कोफिशिएंट से चेक करके देखते हैं. लेट्स से ये वापस हम आ गए अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है. यूजिंग अनदर पेज नाउ. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. अब हमने रूट्स कैसे वेरीफाई करना है, थ्रू कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट से वेरीफाई करेंगे रूट्स सही है नहीं है. तो पहला क्या था, सम ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. हमने 3 रूट्स लिए, अल्फा, बीटा एंड गामा, एंड वी हैव टू चेक वेदर दीज ऑल वेदर दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा आंसर, नीचे तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और ऊपर माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ऊपर में क्या आता है, उससे कम वाला. जब हम सम करते हैं तो नीचे तो हमेशा जो मैक्सिमम डिग्री होती है उसका कोफिशिएंट आता है, ऊपर क्या आता है, उससे कम वाले का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए. बी कितना गिवन है चेक करते हैं. पहले तो अल्फा बीटा गामा में गिवन था, क्या गिवन था, अल्फा बीटा गामा गिवन था, प्लस 3 minus 1 is beta plus minus 1/3 is gamma. ये अल्फा था, ये बीटा था एंड ये गामा था. इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -5. तो माइनस 5, माइनस साइन एज इट इज बाहर रहेगा जो था, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो कितना है 3, तो नीचे 3 आ जाएगा. कई बार यहाँ पे भी नेगेटिव साइन हो सकता है, ध्यान रखना. किसी क्वेश्चन में ये भी नेगेटिव हो सकता है, फिर यहाँ 3 की जगह -3 लिखना पड़ेगा. क्लियर है. व्हेन दिस विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे 5 नेगेटिव लिया है. नाउ लेट्स सॉल्व बोथ ऑफ देम. दिस विल बी 3 minus 1/3. 3 में से 1 माइनस किया 2. over here when we take LCM it becomes 6 minus 1/3 upon 5/3, that is 5/3 equals to 5/3. LHS equals to RHS. दोनों इक्वल हो गए, हेंस ये सही है. ये रूट सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अभी किसके लिए किया है, सिर्फ सम ऑफ रूट्स के लिए. अब नेक्स्ट हमें चेक करना पड़ेगा किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, ध्यान रखना. टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएंगे अगर आप सही से समझोगे. सेकंड इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. और ये क्या होता है, ये हमेशा होता है क्या, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कांस्टेंट नेगेटिव लेते हैं, क्यों, प्रोडक्ट हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का कर रहे हैं, ऑड नंबर का. ठीक से. तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन थी 3 इंटू -1 इंटू -1/3. ये 3 से 3 कट जाएगा. कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट गिवन था -3. कांस्टेंट क्या है हमारे पास, -3. सी की वैल्यू दैट इज अ वैल्यू ऑफ डी, -3 अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 3 अगेन, से नीचे लिख दिया, ठीक है। नाउ -1 into 1 -1 becomes 1, इसको हम लिख लेंगे 1, अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया। -3 into minus sign will gives you positive 3/3. This is 1, this will also be equals to 1. Hence our LHS equals to RHS and this also satisfy, और ये भी verify हो गया। अब थर्ड बचा हमारे पास, वो क्या है? Product of two and their sum. इसका क्या होता है? नीचे तो सेम अगेन क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ, जस्ट वेट अ मिनट, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज आएगा, और ऊपर क्या चला जाएगा? अब जो बचा के हमने कांस्टेंट टर्म यूज कर लिया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यूज कर लिया था, बचा किसका था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बचा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बचा था, तो वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ये नहीं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ की जगह यहाँ ले लो, लेना यहीं पे ही है, ध्यान रखना इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आता जो इसमें जैसी जिसके लिए जो आता है वही चीज आएगी, किसी और के साथ मिसमैच नहीं कर सकते। ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों? यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, सम ऑफ पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी जगह वैल्यूज डालते हैं, तो 3 into -1 प्लस -1 into -1/3, ठीक है। एंड अल्फा एंड गामा इज -1/3 into 3 गिव्स यू, क्या गिव देते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -11, -11 अपॉन a is 3, तो a एज इट इज नीचे आ जाएगा 3। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, 3 into -1 is -3 plus this minus will become positive 1/3, then minus sign into 3 से 3 cancel, क्या बचेगा? अगेन -1। now next we have this -11/3, ये तो फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, both of them cannot be solved। now screen is visible to all of you again। then इस टर्म में हम क्या लेंगे? माइनस, और ये माइनस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, this will become -4 plus 1/3 equals to -11/3। over here we'll take LCM, this will be -12 plus 1/3 equals to -11/3। further इसको लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं? this will be -11/3 equals to -11/3, LHS equals to RHS, hence all three conditions get satisfied, therefore given roots are the roots of given 3, -1 and -1/3 are the zeros of given equation x 3x cube -5x square -11x -3। ये सबको क्लियर है? या मैं रिपीट करूं एक बारी? यस सर। मैं भी एक बारी रिपीट। जब आपको चेक करना है सिंपल वे में, तो क्या करोगे? इन वेरिएबल्स को, जो भी जीरोस गिवन थे, इन जीरोस को वेरिएबल की जगह एक एक करके पुट कर दो। एक बार 3 सब जगह पुट कर दिया वेरिएबल की जगह, एक बारी -1 पुट कर दिया वेरिएबल की जगह, और एक बारी -1/3 पुट कर दिया। अगर वो इक्वेशन 0 हो जाती है तो वो क्या है? उसके जीरोस है, ये तो कंफर्म है। और जब वो कहता है चेक करो इसे विद कोफिशिएंट्स आल्सो, कि कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ जीरोस। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये याद रखना पड़ेगा आपको, तो उसे लिख सकते हैं -b/a। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन थी, हमने लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था यहाँ पे? -5, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 3, तो -5 लिख दिया एक्स स्क्वायर की जगह, माइनस साइन बाहर आएगा जो था, अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, LHS साइड इक्वल्स टू RHS साइड आ जाएगी, हेंस वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा will be always equals to minus constant upon coefficient of x square।
जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी तो उसमें कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है। माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेम कांस्टेंट चेक किया, कांस्टेंट क्या था हमारे पास -3, तो वहाँ कांस्टेंट की जगह -3 लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 3 था, 3 लिख दिया। यहाँ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिखी, सॉल्व किया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू एंड देयर सम्स, दो जनों का, दो अलग अलग रूट्स का जीरोस का प्रोडक्ट और उनका सम कर दो। अल्फा बीटा गामा इन सब की वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये पॉजिटिव रहता है, क्यों, ये दो पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनेंगे, ये दोनों मिलके पॉजिटिव बनेंगे, ये दोनों मिलके पॉजिटिव बनेंगे, तो होल 3 विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। हेंस वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, 3 into -1 पुट करेंगे वैल्यूज और सॉल्व करेंगे। व्हाइल वी सॉल्विंग, x कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था, कोएफिशिएंट ऑफ x वाज -11, therefore we'll put -11 over here. Coefficient of x cube was 3, we'll take 3 over here. When we solve it further, it will also come out to be same. Hence LHS equals to RHS and our condition satisfied that given equation has these 3 roots. इस equation के यही 3 क्या होंगे, roots होंगे। Next क्वेश्चन देखते हैं हम। इजी एक्सरसाइज है, अगर एक बार ही समझ लिया तो बहुत इजीली कर लोगे पूरी, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पहले क्या निकालना है आपको, जीरोस निकालने हैं, फिर उन जीरोस का और कोएफिशिएंट का रिलेशन चेक करना है। जीरोस कैसे निकालना है ना, जैसे आपने अभी बताया। क्या है बेटा, वैसी जैसे आपने बताया। हाँ, नंबर 1 का, ठीक है। रेस्ट यू विल डू इन योर होमवर्क। जो नहीं आएगा वो मैं दोबारा बता दूंगा, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके सर। करना कैसे है, यहाँ ध्यान से देखो जी। सेकंड, अगर मैं इस वाले की बात करूँ, इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसके रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट, इस वाले कंडीशन में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। इसमें सिंपल u कॉमन ले लो, बचेगा अंदर क्या, 4u कॉमन लोगे तो बचेगा अंदर u प्लस 2, तो -2 इसका एक ही रूट होगा सिंगल, दैट इज -2, ठीक है। इस वाले में क्या आएगा, t स्क्वायर -15, तो इसको भी मैं एक छोटा सा करके दिखा दूंगा, ये तो बहुत ही छोटा है, 5th वाला भी लिख लेता हूँ, t स्क्वायर -15। पहले करते हैं सेकंड वाला, 4s सर इसमें अंडर रूट 15 हो जाएगा। हाँ, अंडर रूट वैल्यू रहेंगी, पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। चलो, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन, या नो इट विल बी विजिबल। तो इसको लिया पहले, फर्स्ट ये वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं। लेट्स सी, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें 4s बनाना है, तो ऑलरेडी 4s है ही है, तो इसे क्या करेंगे, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, जिनको क्लियर नहीं है अभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, 9th क्लास में मैं पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो उसकी वीडियो देख सकते हैं। 8th क्लास का है, 8th में भी है, 9th में भी है, दोनों में है, ठीक है। 9th में देयर इज अ सेम चैप्टर हमने लास्ट टाइम पढ़ा, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आना चाहिए। यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट का प्रोडक्ट करके उसके फैक्टर से मिडिल टर्म बनाई जाती है, तो हमने उससे ही बनाया। 4 into 1 is 4, 4 के फैक्टर्स क्या हैं 2 और 2, उससे मैंने 4 बना दिया। नेक्स्ट, यहाँ से कॉमन आएगा 2s इक्वल्स टू 2s minus 1, यहाँ से कॉमन लिया -1, तो इट विल बी 2s minus 1, 2s minus 1 and 2s minus 1, both the zeros are coming same, तो इसके रूट्स क्या होंगे 1/2, both the roots are same, यही इसका अल्फा होगा और यही इसका बीटा भी होगा, रूट्स आर कमिंग टू बी सेम। ऐसी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होने वाला है, ऐसी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होने वाला है कुछ ऐसे, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1 है, तो वो ग्राफ ऐसे करके इस पॉइंट पे टच करके भाग जाएगा, ठीक है। इस पे टच करेगा 1/2 पे, क्लियर है। ये उसी ग्राफ का एग्जांपल है, जब दोनों रूट्स क्या हो गए सेम, लेकिन इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी तो क्या बना पैराबोला।
अब नेक्स्ट इसकी कोफिशिएंट्स से चेक करना है, तो सम देखते हैं। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस इंटू -4, एक्स स्क्वायर कितना है 4, ये हो जाएगा हाफ और हाफ मिलके क्या बनते हैं 1, -4 और 4 मिलके क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। अगेन LHS इक्वल्स टू RHS। ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे चेक करने जाएंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट कितना था हमारा, कांस्टेंट था यहाँ पे 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, तो 1/4। यहाँ पे भी क्या आएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/4। LHS equals to RHS, hence verified. Therefore, by these two we can say that these are the roots of, yeah, these are the zeros of given equation this. Clear सबको? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. On question number 5th, ये उस वाले में क्या करेंगे हम, इसको सिंपल लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस और टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 लिख दो सिंपल ये करके, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15, देन टी विल बी इक्वल्स टू √15, दैट इज एक वैल्यू इसकी होगी प्लस √15, दूसरी वैल्यू होगी माइनस √15। ये इसकी दो वैल्यूज आएंगी। एक तरीका इसे सॉल्व करने का ये है, दूसरा तरीका देख लो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 गिवन था, इसको हम लिख देंगे इस फॉर्म में टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, टी माइनस √15 टी प्लस √15। तो इसके भी दो रूट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा टी इक्वल्स टू √15, दूसरा आ जाएगा टी इक्वल्स टू माइनस √15। ये वाले मेथड से कर सकते हो, ज़्यादा इजी रहेगा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी। अंडर रूट वैल्यूज़ की हमेशा दो वैल्यूज़ आती हैं अंडर रूट टर्म्स की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब भी कभी हम अंडर रूट टर्म्स का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनता है अंडर रूट वैल्यूज़ का, अगर मैं अंडर रूट एक्स का ग्राफ बनाना चाहूँगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, जितना वो पॉजिटिव आएगा एक बार उतना ही नेगेटिव भी आएगा, ऐसे करके, ठीक है। इधर देखते हैं हम, ये आपके क्या आ गए रूट्स, एक को मान लिया अल्फा, एक को बीटा। अब चेक करेंगे इसको कोफिशिएंट के साथ, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं बार बार ये लिख रहा हूँ इससे तुम लोगों को भी याद हो जाए, तुम भी लिख लिख के करोगे, इसे शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। दिस विल बी √15 प्लस माइनस √15 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ पे था ही नहीं, कितना था 0 अपॉन कुछ भी हो 0 के अपॉन तो 1 था, वैसे तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, कुछ भी 0 के अपॉन हो क्या होता है 0, और -15 प्लस 15 ये अंडर रूट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, √15 माइनस √15 इज ऑल्सो 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब चेक करना है हमें प्रोडक्ट के लिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना हमारा, कांस्टेंट टर्म गिवन था -15 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1, तो -15 अपॉन 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है √15 इंटू माइनस √15 इक्वल्स टू माइनस √15 अपॉन 1, जो इधर से आया। इन दोनों को अगर हम सम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा -15 इक्वल्स टू -15, LHS equals to RHS. Hence, both the coefficients are getting satisfied. Therefore, these two are the roots of given equation this.
ये क्लियर है? Yes, sir. किसी को भी डाउट पूछ सकता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स. अब ये क्या दिए हैं उस आपको? ये आपको ऑलरेडी जीरोस गिवन है. एक है वन बाय 4, दूसरा -1. ठीक है, इससे आपको क्या लिखनी है इक्वेशन. ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं. तो जीरोस आर गिवन दिस. इससे आपको क्या लिखनी है इक्वेशन. तो अल्फा हमने कंसीडर कर लिया 1/4 एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू -1. हमने ये दो कंसीडर. अल्फा इज 1/4 एंड बीटा इज -1. इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी, स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी ax² प्लस bx प्लस c. ये हमेशा हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मानेंगे. इक्वेशन की जगह एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं. दिस विल बी अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c. अब हमें इनसे क्या निकालना है? a b c की वैल्यू. सिंपल है. तो क्या होगा? सबसे पहले सम करेंगे. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज माइनस b बाय a. यही होगा. और यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालने की चाहेंगे तो क्या आएगा? 1/4 प्लस -1 इक्वल्स टू माइनस b बाय a. एलसीएम लूंगा, आ जाएगा -3/4. डायरेक्ट कर रहा हूँ अब मैं. एलसीएम लूंगा तो दिस विल बी -4 प्लस 1, दैट इज -3/4 इक्वल्स टू माइनस b बाय a. ये हमारा सम हो गया. प्रोडक्ट किया अल्फा इंटू बीटा. इसे इक्वेशन 1 मान सकते हो. अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब c अपॉन a. कांस्टेंट ये था अपॉन x². अब डायरेक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं. बट यू विल राइट इट, यू विल नॉट डू इट डायरेक्टली. अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इज गिवन 1/4, बीटा is given -1, c your constant is c and a is as it is a, c by a. This will be -1/4 equals to c by a. This is equation 2. अब यहाँ से ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम. इसका भी 4 आया, इसका भी 4 आया. दोनों के डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे भी क्या है? a. तो a क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a will be equals to 4. a तो हम क्या ले लेंगे? 4. c क्या हो जाएगा? -1. c will be equals to -1. डायरेक्ट दिख रहा है. a 4 है तो c -1 है. लास्ट a 4 है तो b कितना हो जाएगा? -b equals to -3. तो b कितना हो जाएगा? b will be equals to 3. माइनस से माइनस साइन कट जाएगा. b क्या आएगा? 3. तो दिस विल बी आर a b and c. और इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन विल बी ax² होता है मतलब 4x². एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 4x² प्लस bx 3x प्लस c कैसा है? नेगेटिव -1. दिस विल बी आर एक्सप्रेशन. बन गया. इसके अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो यही दोनों क्या आएंगे? इसके रूट्स. चेक भी कर सकते हो उसे. कैसे चेक कर सकते हो कि ये सही है नहीं है? एक बारी x की जगह क्या रख दो? 1/4. एक बार x की जगह रख दो 1 और चेक कर लो कि ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर ये 0 हो रहा है मतलब ये दोनों जीरोस इसके हैं. ये क्लियर है सबको? फिर से देख लो एक बारी. ये दो जीरोस गिवन थे. एक जीरोस को मान लिया अल्फा, दूसरे जीरोस को मान लिया बीटा. सॉल्व करना स्टार्ट किया. ये स्टैंडर्ड फॉर्म मानी. अल्फा प्लस बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था? b. तो -b अपॉन a ले लिया. अल्फा बीटा की वैल्यू डाली. ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया -3/4 इक्वल्स टू -b अपॉन a. प्रोडक्ट ऑफ रूट. If value of -b upon a is not negative, then हाँ, अगर ये नेगेटिव नहीं होती ऐसे होता है ना. यही कह रहे हो ना तुम? ये नेगेटिव नहीं होती, ये होता 3/4. तो यहाँ पे a तो 4 ही रहता. नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही आ रहा है. ठीक है. ऊपर क्योंकि ये नेगेटिव है तो b विल बी इक्वल्स टू -3 हो जाता. b कितना हो जाता? -3. ठीक है. फिर ये नेगेटिव साइन उसको नेगेटिव कर देता. क्लियर? yes sir.
यहाँ b पॉजिटिव आया ना, फिर b नेगेटिव लेना पड़ता हमें, माइनस बी इक्वल्स टू 3 होता तो b इक्वल्स टू -3 होता। और इन केस अगर डिनोमिनेटर्स चेंज होते, इसका डिनोमिनेटर कुछ और आता और उसका डिनोमिनेटर कुछ और आता, तो पहले हम क्या करते, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते। सेम करना आता ही है, जैसे फ्रैक्शंस में करते हैं, दोनों को सेम ऊपर नीचे सेम नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करते, सो दैट दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। वो फ्रैक्शन ऑफ कोर्स बदल जाता बट डिनोमिनेटर्स क्या हो जाते, सेम। कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई एक्सप्लेन इट इन बिटवीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज c अपॉन a। सॉल्व करना स्टार्ट किया, विल गेट -1/4 इक्वल्स टू c अपॉन a। a दोनों साइड कॉमन था, सेम था, तो हमने a को बाहर निकाल लिया 4, c डायरेक्टली यहाँ से मिल गया -1, b यहाँ से मिल गया 3, -b इक्वल्स टू -3 तो b इक्वल्स टू 3। उसे पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, a b c की जगह, a b c की जगह पुट किया तो वी गेट दिस एज आवर इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं सर, एक बार √5 वाला बताना। वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था 0, √5 वर टू गिवन रूट्स। एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा, तो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होने वाली है। तो हमने इसमें पहले निकाला सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। 0 प्लस √5 इक्वल्स टू -b/a। √5 इक्वल्स टू -b/a। जिसके नीचे कुछ नहीं है उनके नीचे एक भगवान है, तो √5 अपॉन 1 वी कैन टेक, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c अपॉन a। अल्फा इज 0 इंटू बीटा इज √5 दैट इज c अपॉन a। अब ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू c अपॉन a, फिर 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो रख ही सकते हैं हम। दोनों जगह a क्या है, कॉमन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a will be equals to 1, ये तो क्लियर हो गया। b भी दिख रहा है, b will be equals to -√5, b कितना हो जाएगा -√5, और c कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू 0। c क्या ले लेंगे यहाँ पे, 0। अब इसे फॉर्म में लिख दो, ax² की जगह 1x² प्लस bx² प्लस b कितना हो जाएगा -√5x प्लस c कितना है 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² minus √5x। This will be our equation। क्लियर है? फिर देख लो। यस सर। टू रूट्स गिवन थे 0 और √5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कोएफिशिएंट से अगर इक्वेशन बनानी हो तो। हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज -b अपॉन a। वैल्यू पुट करिए अल्फा बीटा की तो विल गेट √5 इक्वल्स टू -b अपॉन a। इसके नीचे कुछ नहीं है तो फ्रैक्शन में वी कैन राइट 1, ठीक है। ओवर हियर वी हैव प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब c अपॉन a। प्रोडक्ट करेंगे 0 इंटू √5 इज 0 इक्वल्स टू c अपॉन a। 0 के नीचे भी कुछ नहीं था, 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर किया, a तो आ गया 1, दोनों साइड से a क्या आ रहा है 1, ये हमने 1 ले लिया। यहाँ से b पता चल गया, b -b इक्वल्स टू √5, साइन उधर ले जाएंगे तो b इक्वल्स टू √-5 हो जाएगा, और c यहाँ से मिल गया 0। इक्वेशन में पुट किया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर है? b भी 0 हो सकता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी b भी 0 हो सकता है। तो दिस इज योर इक्वेशन। Is it clear to all of you? Now you will be able Yes, to sir. do 2.2 in your notebook. पूरी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, विद एग्जांपल नंबर 5 ऑल्सो। एग्जांपल 5 भी आप अपनी नोटबुक में करोगे, नॉट एज पर जैसे बुक में दिया है वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन बुक से कॉपी करके नहीं करोगे।